Welcome friends, in this video I shall be taking care of workbook questions of chapter 9 buying and selling. Well, I would actually request you to first go through my theory video as well if you still haven't, because without having the basic knowledge about the concepts, it may be difficult for you to actually understand these numericals. On that note, let's start. First question. A has 20 units of good 1 and 5 units of good 2. P1 is 1, P2 is 4. Write and represent graphically the equation of a budget set. Well guys, that's precisely what we are going to do. Well guys, in case of buying and selling, as we discussed in our theory videos as well, what matters here is, first of all, is this value of endowment. So you need to first find out the value of endowment. Well guys, value of endowment should be P1 omega 1 P2 omega 2 is equal to M, where omega 1 and omega 2 are respectively the initial endowments of both the goods. In this case 20 and 5. So 1 into 20 plus 4 into 5, and that's M. So this M value of endowment is 40. What about the budget line? Well, I think if you see, it should be x1 plus 4x2 is equal to 40. That's your budget line. Now if you were to draw this budget constraint, it should look something like this: 10 and 40. 40 by 1, 40 by 4. Well, in my theory videos as well, I specifically told you to cultivate a habit of always showing the initial endowment. So this is where I'm gonna show that. So initial endowment, this you have 20 units and this you have as 5 units. So what was the first part? Write and represent graphically the equation of budget set. Well, we have done that. Second part, if price of both goods double, what happens to the budget set? Well my dear friends, सिंपल इसको अगर समझना है दो तरीके से बता देता हूँ. पहला तरीका, we should all understand that the slope of this budget line is still minus P1 upon P2. So earlier it was minus 1 by 4. Now if it doubles, it will be this. I think there's no change. So it's gonna remain the same. One way of looking at this is this, and the other one is, if prices of both goods double, what happens to the budget set? This is one way of looking at it. Now if you want to use a long handle, then 2 into 20, 8 into 5 shall be M. So your M is gonna be 80. Now what about good one, maximum good one that you can have? Well, it's a 40. What about good 2? Maximum you can have, well, it's 10. So don't you think it is still the same, 10 and 40? So if price of both the goods double, it should not have any effect whatsoever on our budget set. Minded, if we are doing a conventional consumer theory जहाँ पे income fixed होता, फिर अगर प्राइस दोनों गुड्स के डबल होते तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ एंडोमेंट तो प्राइस के साथ चेंज होगी ही, सो दैट्स व्हाई इफ प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स डबल, व्हाट हैपेंस टू द बजट सेट? वेल, नथिंग इज गोना हैपन. Third one, A decides to sell 10 units of X1, label the consumption bundle as C. Well, मेरे बच्चों, good one, this guy has 20. Now he wants to sell how many? Certain units. Okay. Now don't you think जो इसको रेवेन्यू मिलेगा by selling these 10 units, क्योंकि 1 रुपये का गुड है, so 10 रुपीज़ मिलेंगे. आप देख सकते हैं good one is priced at 1. So if you're selling 10 units of a good which is priced at rupees 1, you must get in return 10 bucks, 10 rupees. Now don't you think by implication he has to spend these 10 rupees on good 2 which is priced at 4 rupees. So he'll be able to have how many units? 2.5. How can you show it? Well, let me give you an idea. So he'll be somewhere here, somewhere here. So this is 10 units and this is gonna be a 7.5 units. And yes, we are labeling it as point C. So this was the third part. A decides to sell 10 units of X1, label the consumption bundle as C, and guys, that is what I have done here. So far so good.
Now let's see the last part, D part. After A has sold 10 units of X1, the price of X2 falls to such an extent that they both cost the same. So now you have P1 as 1 and P2 as 1, and your now good one unit which you have is 10 and good 2 you have is 7.5. दोबारा पढ़ देते हैं. After A has sold 10 units of X1, the price of X2 falls to such an extent that they both cost the same. That means both priced at 1. So after A has sold 10 units of X1, so don't you think due to that A must be having 10 units of good one, because out of 20 he has actually sold 10 units already, and good 2 he'll be having 7.5, which we just saw. Show it graphically. Okay, ग्राफिकली अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगेन गो फॉर द वैल्यू ऑफ अंडाउमेंट. नाउ यू हैव इज 1 into 10, 1 into 7.5, and that's going to be 17.5. What about good one? The maximum you can have, well sir, 17.5. What about good two? That you can maximum have now again 17.5. So now if you were to show it diagrammatically how it is gonna look like, आइए बताते हैं. ये कुछ इस प्रकार बनेगा. So that's 17.5 and that is again 17.5. Now some might say, sir, but कॉलेज में हमें बताया था इनिशियल एंडोमेंट से पास करना होता है, इनिशियल एंडोमेंट से पास करना होता है बजट लाइन का रोटेशन. बिल्कुल सही बताया था, लेकिन क्वेश्चन तो देखिए ना. आफ्टर ए हैज सोल्ड 10 यूनिट्स ऑफ X1, तो फिर उसकी एंडोमेंट अब ये रही नहीं, अब उसको यहाँ से ही आपको पास करना पड़ेगा, बिकॉज ही नाउ हैज़ 10 यूनिट्स ऑफ 1 एंड 7.5 यूनिट्स ऑफ 2, एंड जो भी प्राइस में चेंज आया है वो आफ्टर दैट सेलिंग ऑफ गुड 1 आया है. सो दैट यू नीड टू कंसिडर इन माइंड. That's why I'm not passed it through initial endowment. Well, we are still not done with this. Now, given that A satisfy weak axiom of revealed preference, जो आप chapter 7 preference में करते हैं, determine the segment of budget line that A will not choose. Okay, that should be some fun. Let me name it like J, K. So मैं इसी में सिखा देता हूँ आपको. Don't you think this J, K budget line now has two segments, JC and CK? Yeah. Now tell me guys, when this guy went for C, mind it, out of initial endowment he chose to go for C. My simple question to you is, when he went for C, don't you think his whole budget set was this O 10 40? Yes sir. So considering his budget set which was O 10 40, he went for C. Yes sir. Could he have gone for CK? Was CK affordable when he went for C? Yes sir, very much affordable. सिंपल भाषा में जब वो C लिया तो CK भी ले सकता था, CK पर कोई भी पॉइंट ले सकता था, अफोर्डेबल तो था. yes, but he did not go for any point on CK. Instead he rather went with C. So हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन से सेगमेंट पर, गिवन दैट ए सेटिस्फाई वीक एग्जाम रिवील्ड प्रेफरेंस, डिटरमिन द सेगमेंट ऑफ बजट लाइन दैट ए विल नॉट चूज. सो माय बेट इज दैट इज नॉट गोना चूज CK. Why? Because this segment CK is already revealed inferior by this guy in favor of C. तो अगर आपने C लिया था, whereas you could have had any point on CK but you did not go for it, actually you revealed your preference for C, and you actually according to you this segment was revealed inferior by you. So I think abhi bhi you will not go for this. You will be working somewhere in JC, not CK. सो वाई JC? बिकॉज दो रीज़न है. एक तो ये अफोर्डेबल था पर आपने लिया नहीं तो रिवील्ड इन्फीरियर बताया था, एंड दिस सेगमेंट ऑब्वियसली वाज नॉट अफोर्डेबल अर्लियर, सो देयर वाज नो चॉइस अबाउट अर्लियर हैविंग प्रेफरेंस बिटवीन दिस सेगमेंट एंड C. So this is CK, the segment where this consumer should not be working. चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन. हमें यहाँ पर गुड 1 का इनिशियल एंडोमेंट 100 दिया है, गुड 2 का इनिशियल एंडोमेंट 200 दिया है, P1 1 दिया है, P2 2 दिया है, और यूटिलिटी फंक्शन दिया है X1 X2. हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज़ डिटरमिन नेट डिमांड. वेल बच्चों, मैंने शुरू में ही आपको बोला आपको थ्योरी मेरा वीडियो देख लेना चाहिए इन ऑर्डर टू नो दिस कॉन्सेप्ट्स. अगर आपने देख लिया एंड यू आर वेल वर्स विद दैट, तो आइए शुरू करते हैं. ए
नेट डिमांड। वेल मेरे बच्चों, अगर तुमको नेट डिमांड निकालना है तो नेट डिमांड का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडाउमेंट। वेल बच्चों, अगर मैं ग्रॉस डिमांड की बात करूँ ना, तो आप इसको साधारण भाषा में कह सकते हो ऑप्टिमल पॉइंट। तो ग्रॉस डिमांड बेसिकली ऑप्टिमल पॉइंट होता है। तो बच्चा कहता है तो फिर अगर मुझे नेट डिमांड निकालनी है तो इनिशियल एंडोमेंट गिवन है, ग्रॉस डिमांड यानी ऑप्टिमल पॉइंट अगर निकल जाए तो दोनों का डिफरेंस विल बी नेट डिमांड। एब्सोल्युटली। तो आइए लेट अस वर्क फॉर द ऑप्टिमल पॉइंट हियर। वेल ऑप्टिमल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकालो, क्योंकि वो इन अ वे आपको एम दे देगी, एम वैल्यू दे देगी। सो वैल्यू ऑफ एंडोमेंट, वेल मेरे बच्चों P1 ओमेगा 1 P2 omega 2 is equal to m. Well, this should be 1 into 100, 2 into 200 is equal to m. So your m in this case looks like 500. That's cool. आप अगर कहें तो मैं इसका डायग्राम भी साथ में बनाते चलता हूँ, बिकॉज वो हैंडी रहेगा हम सभी के लिए। So there we go. That's good one. That's good too. 500 and 250. So something like this, 250 and 500. And we've got a good habit to show initial endowment always. So initial endowment here should be, it should look something like this, 100 and 200. So far we have just used this. Now we are going for optimal point. Now don't you think, guys, optimal point again you can find it in two ways. First, you can simply use MRS is equal to P1 upon P2. Here MRS is mu of 1 upon mu of 2. This is 1 by 2. Negative sign up, I've eliminated those 1 and 2. So going by this function, don't you think it will be x2 upon x1 is equal to 1 by 2 or x1 is equal to 2x2? I guess that makes sense, right? तो अब हाँ, अगर हम इसको आगे लेके चलें तो यूज़ कर लेते हैं इसको। अब आपकी बजट लाइन क्या बनती? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 500। सर हाउ? वेल मेरे बच्चों, दिस इज हाउ। x1 2x2 इज इक्वल टू 500। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस थिंग, x1 is equal to 2x2, it should be 2x2 plus 2x2 is equal to 500, 4x2 is equal to 500, x2 125 and x1 2 into 125, that is a 250. Now if you want to use the demand function thing, that also you can do. You all know that under normal Cobb-Douglas the demand function for the goods should be this. Why I am doing so? Because you must be comfortable with both the methods. So 500 2 into 1, don't you think it's 250? 500 2 into 2, and that's gonna be 125. So first of all diagrammatically दिखा देते हैं. So मेरे बच्चों, you'll be somewhere here, right? Somewhere here 250, this was 125, and let me call it point E. Yes, you can, if you want, have an IC here, not a problem. That's your optimal point. But my question was not only to find optimal point, he wanted us to find out net demand. आइए अब net demand निकाल के दिखाते हैं आपको. Well guys, for good one पहले बात कर लेते हैं. बच्चों, अगर आप good one का नेट डिमांड निकालना चाहते हो, नेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सर ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडाउमेंट. बिल्कुल सही. सो अब ग्रॉस डिमांड है जो वो एक्चुअली में कंज्यूम कर रहा है, वो कर रहा है 250. इनिशियल कितना था एंडोमेंट? सर 100. सो 150 मोर. अब दो बातों का ध्यान रखना है बच्चा. पहली बात, आप नेट डिमांड का फॉर्मूला लगा रहे हो और ये पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए आप इसको बोलेंगे दैट दिस गाय इज अ डिमांडर या नेट डिमांडर ऑफ गुड वन. अब बात करते हैं गुड टू की. वेल गाइस, अगेन अब अगर आप गुड टू के लिए जाते हैं तो नेट डिमांड निकालना है. नेट डिमांड का फॉर्मूला सर ग्रॉस डिमांड माइनस इनिशियल एंडोमेंट. परफेक्ट. वेल तो अगर मैं यहाँ पे नेट डिमांड निकालूँ तो वो एक्चुअली में कंज्यूम जो कर रहा था गुड वन का, वो था 125 और इनिशियल एंडोमेंट था 200. सो ये नेगेटिव -75 आ रहा है, दैट इज. तो आप बताइए, अगर आप नेट डिमांड का फॉर्मूला लगा रहे हो, नेट डिमांड, और आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसे बोलेंगे दैट ही इज़ अ नेट सेलर ऑफ गुड टू. ये तो रही पहली बात. मैंने कहा था दो बातों का ध्यान रखना, आपको कभी गलती नहीं लगेगी अगर आप ये वेरिफिकेशन करके चलोगे. मुझे बताओ, ये है गुड वन
ये है गुड टू, ठीक है। आपने इसकी 150 यूनिट बाय करी है और इसकी 75 यूनिट सेल करी है। क्या क्या कोई इसमें हम कुछ वेरिफिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन देखें तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। क्वेश्चन में गुड वन का प्राइस कितना है 1, गुड टू का प्राइस कितना है 2। तो डोंट यू थिंक जब आपने 75 यूनिट बेचे होंगे तो आपको 150 रुपये रिसीव हुए होंगे, और जब आपने ये 150 रुपये से गुड वन की 150 यूनिट ली, 1 रुपये की तो है, तो वहाँ पर 150 से खर्च हो गए होंगे। So you can actually verify whether you are going into the right direction or not while solving a numerical. आइए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। Suppose P2 falls to 1. Okay, so P2 falls to 1. So सबसे पहले वैल्यू ऑफ एंडोमेंट पर जो चेंज है उसको आपने पकड़ लेना है। So 1 into 100, ये भी 1 हो गया, into 200, that's M. So M is gonna be 300. That looks fine? Yes sir, absolutely. So अब क्वेश्चन क्या है? Well, suppose P2 falls to 1. Now find new consumption bundle. I'll do that, but don't you think it makes sense कि मैं इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर दूं? और ये मेरे हिसाब से अगर आप इसको शो करते ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। That's 300 and that's 300. Oh sir, why 300? I'll tell you why. Well मेरे बच्चों, if you are gonna go for the good one only, priced at 1, 300. Only good 2, you got 300, priced at 1, that is good 2, again 300. So that's why. So 300 and 300. I think that seals the issue for us. Now again going back to the question which says suppose P2 falls to 1 and now find new consumption bundle. Again बेटा पूरा तरीके से ऐसा पूरा ऑप्टिमल निकाल के देख सकते हो, ये पूरा वाला तरीका, या खाली डिमांड फंक्शन लगा लो। मैं डिमांड फंक्शन से लगा लेता हूँ यार, टाइम बचेगा आपका भी मेरा भी। M upon 2P1, so 300, 2 into 1, that's gonna be 150, x2, M upon 2P2, so 300, 2.1, that's gonna be 150. So now इनका जो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है 150 ईच। सो अगर इसको मैं अगेन डायग्राम में पुट करना चाहूँ तो 150 कहाँ दिखेगा? आई थिंक इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। प्रिसाइजली तो आप वो स्केल से मेजर कर सकते हो, बट समवेयर हियर, सो दैट्स गोना बी ऑप्टिमल पॉइंट। आप चाहें तो यहाँ से भी एक आईसी बना सकते हैं। सो एक बात तो तय है कि ये लोअर आईसी पर आ गया है, दैट मीन्स पहले के मुकाबले लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम हो चुका है। थर्ड पार्ट, well suppose before price of good to fell, the consumer sold all his endowment and planned to use the money to buy the consumption bundle later. Now determine the new bundle. ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। Suppose before price of good to fell, the consumer sold all the endowment and planned to use the money to buy the consumption bundle later. Determine the new bundle. Now don't you people think अगर उसने पहले ही सारा बेच दिया तो पहले जब बेचा होगा 1 रुपये के 100 यूनिट, 2 रुपये पर 200 यूनिट, तो उसको जो पैसे मिले होंगे वो 500 मिल गए होंगे, सो उसकी इनकम हो गई 500। नाउ इफ ही एंटर्स इन द मार्केट, डोंट यू थिंक उसको तो नए प्राइसेस मिलेंगे, यानी P1 1 मिलेगा और P2 भी 1 मिलेगा, एंड नाउ इज इनकम इज 500। नहीं समझ आया? दोबारा देखो। सपोज बिफोर प्राइस ऑफ गुड टू फेल, यानी प्राइस ऑफ गुड टू वॉज 2 and price of good one was 1 and he had 100 units of 1 and 200 units of good 2. So 1 into 100, 2 into 200, total he must have received 500 rupees, right? So consumer sold all endowment and planned to use the money to buy the consumption bundle later. Now determine his new bundle. बताते हैं जी। अब आप इसको ऐसे भी अज्यूम करके कर सकते हो दैट एक कन्वेंशनल कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन है जिसमें एक बंदे की इनकम 500 है, P1 1 है, P2 1 है, ऑप्टिमैलिटी निकाल लिया। निकाल लो भैया, डिमांड फंक्शन लगा लो, M upon 2P1, सो 500, 2 into 1, 250, 500, 2 into 1, 250। एक बात का सब ध्यान रखें बच्चों, मैं डिमांड फंक्शन से बना के दे रहा हूँ, पेपर में कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है आपको डिमांड फंक्शन से करना है। आप अगर वो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो। अब इसको भी डायग्रामेटिकली शो कर दे तो बात बन जाए हमारी। सो ध्यान लगाइएगा बच्चे, इसमें मैं पहले ही ये 250 यहाँ ले जाता हूँ। सो दिस इज गोना बी योर न्यू बजट लाइन, 500 एंड 500, दैट्स योर न्यू इक्विलिब्रियम।
सो वाई 500 एंड 500, अरे इतना भोला क्यों है भाई तू? 500/1, 500/1, क्लियर? यप, चलें आगे, बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेल हमें यहाँ यूटिलिटी फंक्शन दिया है मिन का, यानी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, गुड 1 30, गुड 2 10, P1 5, P2 5। तो ए पार्ट है डिटरमिन दी ऑप्टिमल बंडल। अब मेरे बच्चों, मैं आपको अर्लियर चैप्टर्स में, स्पेसिफिकली चैप्टर 5 में कैसे कॉम्प्लीमेंट्रीज में ऑप्टिमलिटी निकालते हैं सिखा चुका हूँ। सो विल बी यूजिंग दैट ट्रिक हियर एज वेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए पार्ट में वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट की। वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट शेल बी दिस। तो पहले इसको निकाल लेते हैं बच्चों। सो ये हो गया आपका 5 × 30, राइट, 5 × 10। सो योर m इज़ 200। नाउ अगर आपको ऑप्टिमलिटी निकालनी है तो वो मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ, डायग्राम भी बनाऊंगा, डोंट यू वरी, डायग्राम भी बना रहा हूँ। पर ऑप्टिमलिटी अगेन दो तरीके से निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि आपका फंक्शन है मीन x1 x2, तो इसको बाहर ले आइए, ये हो जाएगा x1 = x2। आप अपनी बजट लाइन बनाइए जो कि है 5x1 5x2 = 200। इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x1 = 200, x1 is 20 एंड x2 is also 20। इज दैट क्लियर? इसको भी भैया तो वेरीफाई कर सकता है, 20 × 500, 20 × 500, 100 + 100 200। दिस इज़ व्हाट यू हैव एज इनकम। पूरी इनकम खर्च हो रही है बेटे। अच्छा, अब मेरे बेटा दूसरा तरीका, आप डिमांड फंक्शन यूज़ कर लो। याद करो इस वाले केस में ये डिमांड फंक्शन होता था। सर ये कैसे आया? तो पुराने वीडियोस देख ले, पता लग जाएगा कैसे आया मेरे भाई। सो m जो है वो है आपका 200, 5 + 5, 200, 5 + 5। सो ये भी 20, ये भी 20। मर्जी तेरी है, देखो ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, हाँ, चॉइस इज सोनली योर्स। तो ये तो हमने निकाल लिया पहला केस, ऑप्टिमल बंडल। बट ऑब्वियसली यू वुड बी आस्किंग फॉर कि एक डायग्राम भी बनाते चलो साथ में। तो ठीक है जी, बिल्कुल बना देते हैं। तो सबसे पहले तो बजट कॉन्स्टेंट जो है वो बना देता हूँ जी। 200 रुपये आपके पास है, 5 तो 40। So that's a 40. Our good habit should also be followed here, showing initial endowment, तो वो है 30 और 10। तो यहाँ पे समवेयर यहाँ पर दिखा देता हूँ, that's 30 and that's 10। What about your optimal point? सर 20 and 20, परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है तो ऐसा एल शेप, ये 20 और ये 20। ठीक है जी, यहाँ तक ऑल ओके। आगे बढ़ते हैं जी। सेकेंड पार्ट, P2 15 हो गया, P1 5 हो गया। नाउ फाइंड दी ऑप्टिमल बंडल। तो चलिए सबसे पहले तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट में तो चेंज लाना ही पड़ेगा ना। सो ये हो गया 5 × 30, दैट शुड बी देयर, 5 × 30। गुड 2 का प्राइस 15 हो गया है, सो 15 × 10, दैट्स m। सो 150 m इज 300। वट अबाउट द बजट कॉन्स्टेंट, आइए देख लेते हैं। गुड 1, गुड 2। वेल 300 डिवाइडेड बाय 5, 60, 300 डिवाइडेड बाय 15, एंड दैट शुड बी 20। आई होप यहाँ तक क्लियर मेरे बच्चों। सो अब अगर आप इसको डायग्राम में शो करते हैं, विच यू मस्ट, तो ये कैसा दिखेगा? वैल्यूज एक बार और देख लेता हूँ यहाँ, 20 और 60, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है जी, 20 एंड 60। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है ये भी देख लेते हैं यार, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लें हम। कहता है P2 15, P1 5, नाउ फाइंड ऑप्टिमल बंडल। चलो जी, ऑप्टिमल बंडल निकालते हैं। सो अगेन यार डिमांड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, समय बचेगा। सो m/P1 + P2, m/P1 + P2, ये हो गया 300, ये हो गया 5 + 15, 300, 5 + 15, 300 डिवाइडेड बाय 20, 300 डिवाइडेड बाय 20। सो डोंट यू पीपल थिंक, अब जो आपका वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15 एंड 15। तो सर शो कैसे करेंगे भाई? जैसे करना चाहिए वैसे करेंगे, 15 एंड 15। सो भैया 15 एंड 15 समवेयर हियर। सो देखो तुम पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गए, एज अ कंज्यूमर लोअर IC पर आ गए। ठीक है जी, पॉइंट लिख सकते हो E1 E2, मैं जान के लिख रहा, क्लमजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा डायग्राम। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट।
दैट इज कि वो नो नया ऑप्टिमल निकालो, निकाल दिया जी ऑप्टिमल। अब कहते हैं ए सोल्ड द एंटायर x1 एंड x2, ही हैज़ 200 रुपीज़, नाउ फाइंड ऑप्टिमल एट न्यू प्राइसेस। तो इट्स लाइक पिछला केस कि वो पहले ही प्राइस चेंज होने से पहले बेच गया सारा। तो आप देखो 30 इंटू 5 150, 10 इंटू 5 50, तो 200 रुपये आ गए होंगे। तो वो कह रहा है उसने पहले ही सारा बेच दिया, तो उसके बाद 200 रुपये आ गए, अब वो खरीदने जा रहा है। जाओ भाई खरीदने जाओ। तो अब अगर वो खरीदने चाहता है, डोंट यू थिंक डिमांड फंक्शन एम P1 प्लस P2 200, अब प्राइसेस चेंज हो चुके हैं माइंडेड, तो ये 10 यूनिट्स रह जाएगा। x2 P1 प्लस P2 अगेन मेरे बेटे 10 यूनिट्स रह जाएगा। तो अब सर इसको शो कैसे करें अभी बताते हैं कैसे शो करना है आपको। वेल मेरे बच्चों, अगर एक चीज़ आप नोटिस करें, यहाँ पर इसके पास 200 रुपये हैं, अगर m की बात करें, हाँ सर 200 डिवाइडेड बाय 5 सर 40, और 200 डिवाइडेड बाय 15, भाई एक का प्राइस तो 15 हो गया है ना बेटा जी। तो वो भी आपको वैल्यू अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं। सो गाइस ये सॉल्व करके आ गया आपका 13.33। आप जब रीडिंग का ऑफिशियल आंसर देखेंगे ना, तो वो ये वाला बनाता नहीं है, मे बी उसको लगता है बहुत क्लमजी हो जाएगा, लेकिन आप अगर कहेंगे तो हम बिल्कुल बना देते हैं। 40 और 13.133। ओके, सो कुछ इस तरह से ध्यान लगाएंगे बच्चा। 10 10, यहाँ पे ऑप्टिमम भी 10 10 है ना, उसके हिसाब से बना देता हूँ लाइक दिस। ये देखो जी 13.33, 40 ऑप्टिमलिटी का है 10 10, तो अब यहाँ पर आ गए आप, ठीक है, दिस इज 10 10। ये एल शेप आई है पूरा, आप चाहे तो नीचे से भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई से दिखाना हो तो। आपकी रीडिंग दिखाती नहीं है इसको। 10 यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे से बनाएंगे तो ऐसे दिख जाएगा, बट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 10 10 आप डायग्राम में ये दिखा सकते हैं। अब आते हैं जी फोर्थ पॉइंट पर, ब्रेक द अबव इनटू ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। तो वेल बच्चों, ये भी मैं आपके साथ डीकम्पोजिशन जब मैं चैप्टर 8 का आपको सिखा रहा था स्लस्की का, मैंने आपके साथ ये बात की हुई है। आप मेरी चैप्टर 8 की वीडियो देखिए, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री वाली, हमने ये बात करी हुई है। देखिए अगर गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो कि इस केस में तो बिल्कुल हैं, तो आपको ये बात याद रखनी ही पड़ेगी कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में देयर कैन नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचो, आप सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते ना, आपको गिवन प्रपोर्शन में यूज़ करना पड़ेगा। सो अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट की। सो ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट जो नॉर्मली होता वो होता 10 - 20 - 10। मैं फ़र्क बताता हूँ इसमें। और अगर बात करें एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट, तो मेरी बात समझना मेरे बच्चों, ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट का मतलब होता है आप पुरानी इनकम के साथ ही सॉल्व कर रहे हो। आप बताओ, आपकी पुरानी इनकम मैं दिखा देता हूँ आराम से, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन बताता हूँ आपको ये एंडोमेंट वाले पे। ये बताओ ओरिजिनल इनकम कितनी थी सर, 200, ठीक है। अब मुझे बताओ प्राइस चेंज हुआ, तो तुमने जब ये ऑप्टिमल निकाला इनकम भी चेंज कर दी, हाँ सर कर दी। मेरा बेटा अगर इनकम भी चेंज करते हो, जो होनी चाहिए बाइंग एंड सेलिंग के केस में, तो तुम बात करोगे एंडोमेंट इनकम इफेक्ट की। तो एंडोमेंट इनकम इफेक्ट हुआ 15 - 10, ये ध्यान से समझना, दैट्स 5। अब मेरी बात को समझना मैं कर क्या रहा हूँ। चलो हाँ ना में जवाब दो। शुरू में इनकम 200 थी, हाँ सर थी। अब शुरू में प्राइसेस क्या थे, P1 5, P2 5, हाँ सर थे। मेरे बेटा जब तूने इसको यूज़ किया था, चल X1 की बात कर लेते हैं, किस गुड के प्राइस में चेंज आया था, गुड 2 के प्राइस में चेंज आया था, तो उसकी गुड 2 की बात कर लेंगे। हाँ P2 में चेंज आया है, तो गुड 2 की बात कर लेते हैं। चल गुड 2 पहले तो कितने यूनिट्स ले रहा था सर, यहाँ से देखते हैं 20 यूनिट्स ले रहे थे सर, ठीक है बेटा। अब तू बता P1 5 ही रहा था और P2 15 हो गया था, हाँ सर हो गया था। यहाँ पर ध्यान लगाना मेरे बच्चे तुमको, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इनकम सेम रखकर इस पे सॉल्व करो, 200 रखकर, जो कि कन्वेंशनल कंज्यूमर थ्योरी में करते थे हम, प्राइस एंड इनकम तो हम वही रखते थे ना एंड में टोटल प्राइस इफेक्ट निकालने के लिए। तो अब आप बताओ, डोंट यू थिंक जब इनकम रख के देखा तो 10 10 आया, गुड 2 की बात करते हैं 10 आया, राइट, यस सर 10 आया मेरे बच्चे। तो फिर प्राइस बढ़ने से गुड 2 के आपकी डिमांड कितनी कम हो गई है सर, 10। ये है ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट।
क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस है तो प्राइस इफेक्ट हैज़ टू बी इक्वल टू इनकम इफेक्ट। अभी मैं एक नॉर्मल केस भी कराऊंगा, बेफिक्र हो। अब बात करते हैं एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। अब मेरे बच्चों, कन्वेंशनली आप जब बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हो तो आप कहते हो कि जी अगर ये बड़ा है और ये बड़ा है तो मेरी इनकम भी चेंज हो जाएगी, नई इनकम आ जाएगी, जो अब याद करो 300 थी। सर कैसे? अरे ऐसे मेरा बेटा, ये देख, नया प्राइस के साथ। तो जब 300 रुपये से तुमने ऑप्टिमलिटी निकाली होगी अपनी, 300 रुपये से, तो ध्यान रखना है 15 आ रहा था। हाँ सर 15 आ रहा था, तो गुड टू 15। तो ओरिजिनली मेरा बच्चा तो कितना कंज्यूम कर रहा था सर 20, अब कितना कर रहा है 15। कितना कम सर 5। ये है एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। यानी अगर मैं ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट ले रहा हूँ इस केस में, तो मैं ओरिजिनल इनकम को नए प्राइस के साथ कंपेयर करूंगा। और अगर मैं एंडोमेंट इनकम इफेक्ट ले रहा हूँ तो नाम से ही पता लग रहा है ना, एंडोमेंट इनकम, यानी जैसे प्राइस चेंज होगा वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट चेंज होगी, तो उस वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट चेंज होने से जो आपकी इनकम बनेगी उसके बेसिस पर अगर आप सॉल्व करते हो जो भी नई वैल्यू और उसको कंपेयर करते हो ओरिजिनल वैल्यू से, दैट डिफरेंस इज योर एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। चिंता मत कर, अभी अगले भी क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को, एंडोमेंट इनकम इफेक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वही बच्चा क्लियर कर सकता है जिसको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक बताओ कि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट। खाली इनकम इफेक्ट देखना है तो ओरिजिनल इनकम न्यू प्राइस को कंपेयर करो ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ। एंडोमेंट इनकम इफेक्ट देखना है तो प्राइस चेंज होने से आपकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट चेंज हुई होगी, यानी नई इनकम आई होगी। वो जो नई इनकम आई है उसको नए प्राइस के साथ जो डिमांड आप कर रहे हो उसको कंपेयर करें, उस डिमांड को, उस क्वांटिटी को ओरिजिनल क्वांटिटी से, दैट्स गोना गिव यू एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। अभी और क्वेश्चन करते हैं। गाइस अब आपको फोर्थ क्वेश्चन सिखाता हूँ, इसके थ्रू मैं आपको एंडोमेंट इनकम इफेक्ट आई थिंक अच्छे से समझा पाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है x1 इज इक्वल टू 10 + m/10p1, और फिर हमें बोलता है कि अ फार्मर प्रोड्यूसेस 40 एप्पल्स एट प्राइस 3। ओके कूल। अब मेरे बच्चों इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आराम से चलता हूँ, वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकालता हूँ आपके लिए। बच्चों यूजुअली जब आप वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकालते हैं तो लिखते हैं P1 ω1 P2 ω2 इज इक्वल टू m। यहाँ पर एक ही गुड है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ P1 ω1 इज इक्वल टू m। गोइंग बाय दैट 3 × 40 हो गया 120। ये सो कॉल्ड आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि भाई वैल्यू ऑफ एंडोमेंट पता लग जाए। अब बेटा इस डिमांड फंक्शन में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए 10 × 3, ये आ गई आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी 14। अब क्वेश्चन कहता है कि सपोज ये जो प्राइस है ना ये फॉल होके 2 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ध्यान लगाना मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हैड इनकम रिमेन्ड सेम, जो कि कन्वेंशनल कंज्यूमर थ्योरी में होता था कि भाई प्राइस ही चेंज होता है तो इनकम में थोड़ा ना कोई चेंज आ जाता था उससे, तो उस केस में आप जब ये डिमांड फंक्शन लगाते, इनकम वही लेते, प्राइस नया ले लेते, तो आप बताइए कितने यूनिट्स खरीद पाते? सर 16। एब्सोल्युटली। पर मेरे बच्चों डोंट यू थिंक ये कन्वेंशनल कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो बाइंग एंड सेलिंग का क्वेश्चन है। इस केस में अगर प्राइस चेंज होगा तो प्यारे बच्चों आपकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट इज बाउंड टू चेंज। इट्स लाइक 2 × 40 आपकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट 80 हो जाएगी बच्चों, राइट? ये सर एब्सोल्युटली। तो बच्चा अब एक्चुअली में जो आप डिमांड करेंगे वो देखते हैं, इनकम 80 नया प्राइस, ठीक है, ये हो गया 14। तो मुझे आप ये बताइए सोच के आराम से, डोंट यू पीपल थिंक अगर इनकम सेम रहती तो आप कितने डिमांड कर लेते प्राइस गिरने के बाद? सर ऑब्वियसली 16, लेकिन इनकम तो सेम रही नहीं क्योंकि ये तो एंडाउमेंट का केस है। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर बोलोगे ड्यू टू दिस एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट विच इज -2, आपको कंजम्पशन का 2 यूनिट का नुकसान है। दोबारा समझ लेते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 14? यस सर। अगर प्राइस 3 से 2 हो गया लेकिन इनकम सेम रहती तो आप 16 यूनिट खरीदते? यस सर। तो अगर आप तब 16 यूनिट खरीदते तो आप 2 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहे होते? जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया।
अब मुझे ये बताइए, क्या वाकई में जब गिवन द सिनेरियो कि फार्मर के पास 40 एप्पल है, एक एप्पल 3 रुपये का है और अब एक एप्पल 2 रुपये का हो गया है, तो क्या आप सही मायने में ये कह सकते हो कि उसके पास 120 रुपये वैल्यू ऑफ मनी है अब? जब उसके जो 40 यूनिट्स हैं, 40 एप्पल हैं, वो 3 रुपये के नहीं बिकेंगे, 2 रुपये के बिकेंगे मार्केट में। नो सर, 80 रुपीज़ हो गया। तो डोंट यू थिंक एक्चुअली में उसकी इनकम सेम नहीं हुई है, उसकी सेम रही है, इनकम चेंज हो गई है, और इनकम चेंज होने के बाद ही इज़ कंज्यूमिंग 14। अगर चेंज ना होती, सेम रहती और फिर प्राइस ऐसा 2 रुपये होता तो 16 खरीदता। डोंट यू थिंक 2 यूनिट का नुकसान है? इसको कहते हैं अंडाउमेंट इनकम इफेक्ट, बिकॉज ऑफ अंडाउमेंट केस, बिकॉज ऑफ बाइंग सेलिंग केस, जो उसको कंजम्पशन कम हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड अंडाउमेंट इनकम इफेक्ट। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना होता या ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट देखना होता तो वो नॉर्मल तरीके से आप निकालेंगे, जो स्लस्की में सिखाया था। लाइक ये इनकम ले लेते आप, अपना जो ओरिजिनल इनकम था 120, उसी पे सॉल्व कर लेते। लाइक वो ले लेते डेल्टा एम x1 डेल्टा p1, एम प्राइम निकाल के फिर उस प्राइम एम प्राइम को यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता, इस टोटल इफेक्ट में से उसको माइनस करते, दैट वुड हैव बीन योर ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट। So फिलहाल this is how you can calculate endowment income effect. Now guys, question number 5, ये आपको endowment income effect सीखने में और बेहतर हेल्प करेगा। Owner of an egg farm produces 300 eggs a week. Initially the price of x is 4. Here demand function is x is equal to 180 plus m upon 10p. Price of egg then falls to 3. How many eggs does she consume before and after the fall in price? And how much is the endowment income effect? No problem. सबसे पहले बेटा आप वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकालेंगे। P1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू m, सो 4 into 300 that's gonna be 1200. our first step ओरिजिनल उसके डिमांड निकालने के लिए 180 1200 10 into 4 एंड ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यार है 210 यूनिट्स। अब मेरे बच्चों प्राइस जो है वो गिरकर 3 रुपये हो गया। नाउ डोंट यू थिंक अगर प्राइस 3 रुपये हो गया और इनकम सेम रहती, इनकम सेम, तो डोंट यू पीपल थिंक ये होता 180 प्लस 1200 अपॉन 10.3 30 और ये हो जाता 220, राइट गाइस? या लेकिन बेटा आपके प्राइस चेंज होने से वैल्यू ऑफ एंडोमेंट चेंज होती है ना, सो एक्चुअली में इट शुड बी 3 into 300 दैट्स 900। अब अगर आप डिमांड देखें तो डिमांड फंक्शन में 180 प्लस 900 अपॉन 10 into 3, सो 180 30 ये हो गया 210। तो मुझे बताइए ओरिजिनली यू वर बाइंग हाउ मच? सर ओरिजिनली आई वाज बाइंग 210 एब्सोल्युटली। तो मुझे बताइए अगर प्राइस गिर जाता है और आपकी इनकम में चेंज ना आता तो आप कितना खरीदते? सर 220, ग्रेट। लेकिन प्राइस गिरने से क्या आपकी इनकम सेम रह रही है या इनकम चेंज हो रही है? सर इनकम तो चेंज हो रही है। तो अब इनकम चेंज होने पर आप कितना खरीद रहे हैं? सर 210। सो एंडोमेंट इनकम इफेक्ट शुड बी -10. You could have bought 220 had your income remained same, but you are now buying only 210. How much less? So 10 units less. That, my dear friends, is your endowment income effect. अगले वीडियो में आपके साथ बात करेंगे लेबर सप्लाई के न्यूमेरिकल्स की, माउथ वाटरिंग प्रोस्पेक्ट्स।